Good morning, my dear students, and welcome to today's class. Dear students, I hope that all of you are fit and fine in your homes and you all are taking care of yourself. Dear students, today is a very special day because after a very long break of 30 days, you are back to your classes and hence we get the chance to meet again. Dear students, now that you are back, it's time to resume your studies, and you should do so with all of your energy and all of your creativity and your mind focused on your studies. So, dear students, now let's start our class. Dear students, in today's class, we will be learning we'll be reading the chapter The Little Girl by Catherine Mansfield. So, The Little Girl is a story about, as you can get an idea from the title itself only, that it's a story about a little girl. What are the challenges that she experiences, how she overcomes her difficulties. All that will be reading in this chapter. Dear students, so open your main course book Beehive and open chapter number 3 and come to page number 32, The Little Girl. The Little Girl, it has been written by Catherine Mansfield. Okay, so let's start the chapter. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Dear students, ध्यान से हमें रीड करना है बहुत. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Than when you were younger. ये than कौन से वाला है? जो कंपैरिजन के लिए होता है. ओके, हम कंपेयर कर रहे हैं कि when you were younger and now that you have slightly matured in age, then do you know them better? Okay, so यहाँ पे comparison हो रहा है, and I think the answer to this question would be yes, right? Most of you would give yes as an answer to this question. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. Obviously, when you understand the reason behind the action, you are more supportive of the action, right? लाइफ में जब भी हमारे सामने कोई भी चैलेंजेस आते हैं, जब हमारे सामने वो सिचुएशन आती है जब लोग वैसे बिहेव नहीं करते जैसे हम उन्हें चाहते हैं, सो एट दैट टाइम वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रीजन. क्या रीजन है कि वो वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसा हम चाहते हैं? वंस यू अंडरस्टैंड दिस रीजन, देन very simply you will be able to understand why they did what they did. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. So ये जो स्टोरी है जिसमें इस लिटिल गर्ल की फीलिंग्स चेंज हो जाती है, किसके बारे में? उसके फादर के बारे में. It will find echo in every home. Echo means it will find a connection in every home. It will find, a similar striking example. बिल्कुल उसके जैसा ही कुछ आपके साथ भी होगा. So you'll be able to find that. All right, let's start. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." He was a figure to be feared and avoided. साथ में meaning दिया हुआ है. A figure to be feared and avoided means जिससे थोड़ा डर लगे, थोड़ा
जिसकी हम रिस्पेक्ट करें. ओके, ऐसी फिगर कौन होती है घर में? ऐसी फिगर होती है फादर की. ओके, fathers, they are the ones who are strict in nature, and mothers, they are the ones who are caring in nature. So what was the routine? The routine was that the father used to come in the room of the little girl, give her a kiss, and the girl would say goodbye father. It means जो father है, he is going to his office. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. So there was a glad sense of relief. Glad sense of relief means happy sense of relief. बहुत ही उसे खुशी होती थी कि that oh, the noise of the carriage. Carriage क्या? जो पुराने टाइम जो कार थी वो. ओके, जो उस कैरेज की जो नॉइज थी वो कम होती थी. फेंट ग्रू फेंटर एंड फेंटर. फेंटर होना मीन्स लो इन इंटेंसिटी. जैसे वो कम होती जाती थी. सो शी यूज्ड टू become more happy. Why? Because she was very much afraid of her father. Okay, अगर तुम्हें scary, scared, scaring इन वर्ड्स में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो सिंपली एक वर्ड है इंग्लिश में अफ्रेड, यूज करो. मीनिंग सेम है और अफ्रेड की कोई भी फॉर्म तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं, वो हर जगह अफ्रेड ही होगा. तो तुम स्केर्ड की बजाय तुम अफ्रेड लिखना स्टार्ट करो. दैट वुड हेल्प यू. ओके, उससे मिस्टेक्स नहीं होंगे तुम्हारे आंसर में. सो इन द इवनिंग व्हेन he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. So father evening में जब आते थे, so at that time she used to hear the loud voice of the father. ये भी एक रूटीन का ही पार्ट है. ओके, एक रूटीन है that the father gives Kezia a casual kiss at the time when he is going to his office. Okay, bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. So father क्या करता है, इवनिंग में आने के बाद वो सबको इंस्ट्रक्शंस देता है. ओके, जैसे वो अपनी टी मंगवाता है, अपने पेपर को, इवनिंग पेपर जो होता है, अभी तो ऐसा नहीं होता लेकिन अर्लियर क्या होता था कि there was a morning paper, there was an evening paper. इवनिंग में भी पेपर आता था. ओके, सो वो इवनिंग पेपर की रिक्वेस्ट करता है. ओके, पेपर ये मीन्स न्यूज पेपर. कंफ्यूज मत होना कि कोई ऑफिस पेपर या कुछ नहीं, न्यूज पेपर की बात हो रही है. जैसे मॉर्निंग में न्यूज पेपर कुछ लोग पढ़ते हैं, वैसे कुछ लोग इवनिंग में पढ़ते थे उस टाइम पे. सो उनके लिए इवनिंग न्यूज पेपर आता था. ओके, Kezia, mother would call to her. If you are a good girl, you can come down and take off father's boots. So अब mother Kezia को instruction दे दिया that if you are a good girl, okay, तुम एक well behaved girl हो, then come and take off your father's boot. आकर अपने जो father हैं उनके boots को उतारो. Okay, so Kezia को ये इंस्ट्रक्शन उसकी मदर से रिसीव होता. ओके, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. सो बहुत ही स्लोली दैट गर्ल शी वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. स्लिप डाउन मीन्स कम अनविलिंगली. बहुत ही वो जबरदस्ती से होता है ना जो आना, कि जबरदस्ती से उसका मन ही नहीं होता आने का, वो बहुत ही जबरदस्ती से आती है. ओके, and then more slowly still across the hall. जब वो और स्लो हो जाते जब वो ड्राइंग रूम के पास पहुंचती है, जब वो हॉल को क्रॉस करती है. and then she opens the door of the drawing room. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. अब फादर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है that okay, ये जो बूट्स हैं पुल देम ऑफ. ओके, इन्हें उतारो. एंड ही इज आस्किंग हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे.
ओके, तो वो पूछा है कि क्या आपने आज सबके साथ अच्छे से बिहेव किया, वर डिड यू फॉलो योर मदर, तुमने सबकी बात सुनी या नहीं. सो इज आस्किंग जनरल, दैट इन जनरल. ओके, लाइक आपके फादर आपसे क्वेश्चन करते होंगे ना इवनिंग में आने के बाद, यस डिड यू स्टडी टुडे. सो केजिया से भी क्वेश्चन हो रहा है. ओके, एंड स्टडीज एंड मैनर्स दे आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, सो स्टडीज के साथ साथ जब पेरेंट्स आपको मैनर्स पे फोकस करने के लिए कहे, at that time you should do it because it is very important. Okay, I don't know father. अब देखो, उसने डी एक ही बारी में नहीं कहा, उसने सिंपली ये नहीं कहा डोंट नो, उसने कहा आई डोंट नो फादर. ओके, you don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. Okay, अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टटर. स्टटर मीन्स टू स्टॉप वाइल स्पीकिंग. ओके, स्टटर होना मीन्स रुकना. वो रुक रुक के बोल रही थी ना, जैसे टी को उसने वो एक बारी में नहीं बोल पाई, उसने रुक के बोला. ओके, सो उसका जो फादर है वो कह रहे हैं कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे अगर वो ऐसे बोलेगी तो. She never stuttered with other people, had quite given it up. वो जो और लोग थे उनके साथ स्टटर नहीं करती थी, उनके साथ नहीं अटकती थी. She had quite given it up. Given it up means छोड़ दिया था, उसने उस हैबिट को रिमूव कर दिया था. But only with father because then she was trying so hard to say the words properly. But then with father, अपने फादर के साथ ही वो स्टटर करती थी. क्यों? Because she was trying to say words properly. उस टाइम वो she was trying very hard. कभी कभी हम जब ज्यादा मेहनत करते हैं तब ज्यादा दिक्कत होती है, राइट? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ओशन में जब शिप्स होती है और जब एक बहुत स्टॉर्म आता है, ओशन में जब स्टॉर्म आता है तो शिप्स बहुत ज्यादा हिलती है, राइट? ओके, अगर उस टाइम पे जो शिप का कैप्टन है वो भी शिप को और घुमाएगा तो क्या होगा? शिप कंट्रोल में थोड़ी आएगी. उस टाइम पे कैप्टन क्या करते हैं, वो वाटर के फ्लो के अकॉर्डिंग अपनी शिप को आराम आराम से कंट्रोल करते हैं. ओके, सो इन सर्टेन प्रेशर सिचुएशंस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्राई हार्ड, बट यू आर रिक्वायर्ड टू बी काम एंड बी कंपोज्ड. ओके, बहुत ही कामनेस के साथ, बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही हर चीज कैलकुलेट करके सोचकर फिर चीजें करनी होती है. ओके, What's the matter? Why are you looking so red? What are you looking so wretched about? So, अब फिर से फादर बोल रहे हैं what's the matter? What are you looking so wretched about? Okay, so अब फादर बोल रहे हैं फिर से. Okay, what is he saying? He's speaking to Kezia. Okay, he wants to know what's the matter. कि प्रॉब्लम क्या है ऐसी कि why do you stutter? तुम अटकते क्यों हो? ओके, फादर ये चीज जानना चाहते हैं. What are you looking so wretched about? Wretched means unhappy. Okay, so why are you looking so unhappy? क्या ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या इश्यू है that you are looking so unhappy? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. So now he is speaking, the father, he is speaking to his mother, and what is he saying to his mother? That I wish you taught this child. मैं ये चाहता हूँ कि आज काश आपने इस बच्चे को ये सिखाया होता that not to appear on the brink of suicide. ऐसा ना लगे कि जैसे ये suicide करने वाली है. Okay, here Kezia carry my teacup back to the table carefully. अब उसने कहा कि अपनी मदर को वो कह रहा है कि इस बच्चे को ऐसे सिखाओ कि ऐसा ना लगे that she is on the verge of suicide. Verge का brink, on the brink of suicide. Brink का मीनिंग क्या होता है? On the verge of, उसके किसी चीज को के एज पे. ओके, किसी चीज के बिल्कुल एज पे, कि मतलब ऑलमोस्ट वो करने ही वाले हो जैसे. ओके,
उसने कहा कि ऐसा क्यों लगता है इसको देखकर, ऐसा इसको सिखाओ कि ऐसा ना लगे। ओके, फिर उसने केजे को इंस्ट्रक्शन दिया दैट कैरी माय टीका बैग केयरफुली। सो हियर यू कैन सी दैट हाउ स्ट्रिक्ट इज द फादर इन नेचर, है ना। केजिया ने जस्ट जरा सा स्टटर किया, बट बजाय कि वो उसको सॉफ्टली कहे, आराम से कहे, प्यार से समझाए दैट चाइल्ड यू शुड नॉट स्टटर, और द चाइल्ड you can practice how to speak properly, वो ऐसे कुछ भी encouragement वाइज नहीं कह रहा, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होके बोल रहा है, उसकी जो टोन है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। एंड देयर इज अ स्लाइट हिंट ऑफ एंगर, थोड़ा सा गुस्सा भी है उसमें। ओके, जरा सा थोड़ा सा उसमें गुस्सा भी है, और इस वजह से his appearance is very much scary to Kezia because she is just a little girl। कोई आप बड़े हो, ठीक है, आपसे कोई तेज अगर बात करे, गुस्से में बात करे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन एंड यू कैन प्रॉपरली रिस्पॉन्ड। बट Kezia, she cannot do anything except getting scared, so वो सिर्फ डरती रहती है और कुछ भी नहीं होता। ओके, On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। So Sunday afternoons क्या होता है कि grandmother उसको drawing room में भेजती है so that she can have a nice talk with father and mother, ताकि वो father and mother के साथ बात करे, उनके साथ उसकी bonding हो। ओके, वो अपने पेरेंट्स को समझे। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa। You can see this image also। Okay, dear students, here is this image also given। So ये जो image है, इसमें देखो क्या हो रहा है, that the father he is stretched out on the sofa lazily, जैसे वो lazily father लेट जाते हैं। Okay, so father is lying on the sofa, mother she is reading a newspaper। Okay, Father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face। जो father का handkerchief था वो उनके face पे था। His feet on one of the best cushions। See, you can see कि एक feet भी जो है वो cushion पे रखा हुआ है। Okay, sleeping soundly and snoring। Sleeping soundly, soundly means deeply। So बहुत ही deeply बहुत ही डीप स्लीप में फादर जो है वो सो रहे। तो अब केजिया बात थोड़ी कर पाएगी, राइट। केजिया वॉन्ट बी एबल टू हैव द टॉक विद हर पेरेंट्स। शी sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched। So उसने क्या किया, she sat on a stool and gravely watched him until he woke and stretched। Who is he here? The father of Kezia। Gravely watched him। Gravely means intently, बहुत ही उसको ध्यान से देखती रही। वो अपने फादर को बहुत ही ध्यान से देखती रही और ऑब्जर्व करती रही कि फादर जो है वो क्या कर रहे हैं। And stretched and asked the time, then looked at her। So फादर उठे, उन्होंने स्ट्रेच किया जैसे नॉर्मली पीपल लोग स्ट्रेच करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं उठने के बाद। ओके, एंड ही आस्क्ड द टाइम कि ओके क्या टाइम हो गया। देन ही लुक्ड एट केजिया। डोंट स्टेयर सो केजिया। स्टेयर मींस घूर कर देखना, ऐसे घूर कर मत देखो केजिया। फादर सेड, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तुम कैसी लग रही हो? यू आर लुकिंग लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। ओके, आउल्स भी जो होते हैं वो घूर घूर के देखते हैं, राइट। सो उसने अगेन केजिया को कोई काम रिमार्क नहीं दिया, कोई कंफर्टिंग रिमार्क नहीं दिया, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही एक रफ रिमार्क दिया है। ओके, एक बहुत ही जो फादर का स्ट्रिक्ट नेचर है, फादर ने उसके अकॉर्डिंग ही केजिया को एक स्ट्रिक्ट रिमार्क दिया है और उसे कहा है दैट डोंट स्टेयर लाइक अ ब्राउन आउल। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week। So एक दिन जब she was kept indoors means वो कहीं बाहर नहीं जा सकती थी because she had a cold।
उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बताया कि फादर जो है उनका बर्थडे है नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसने उसे बताया कि एक पिन कुशन बनाओ, ओके, कुशन, पिन कुशन बनाओ जो कि खुद से ही आप बना सकते हो, ओके, और येलो सिल्क के एक ब्यूटीफुल क्लोथ से तुम ये पिन कुशन बना सकते हो, ओके। सो अब केजिया को ये टास्क उसकी ग्रैंडमदर ने दिया, बिकॉज क्यों, क्योंकि फादर का बर्थडे, तो ऑब्वियसली फादर को बर्थडे पे गिफ्ट दिए जाते हैं। सो केजिया ने भी सोचा कि चलो ओके, आई विल मेक दिस गिफ्ट, ओके। ग्रैंडमदर ने क्यों कहा ऐसा, बिकॉज इससे जो फादर और डॉटर हैं उनकी बॉन्डिंग बेटर होगी, उनकी बॉन्डिंग improve होगी, एंड दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर मोर एंड लव ईच अदर मोर। सो इसलिए ग्रैंडमदर ने ऐसा कहा, okay. So dear students, today we will be reading till here only. Now if you have any doubts, please you can ask them from me in the Kaizala app, you can give me a call, or you can send me a message on WhatsApp, okay. So dear students, that's it for today's class. Thank you and have a great day ahead.